This call is now being recorded. Fine. So very good morning to all of you. Good morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Yeah. Okay. So dear students, today we're going to start with the very first module, that is signals. So first of all, let's try to understand what do you mean by the word signal. So yesterday we have seen the signal is basically an information, a message. Okay. Like for example, suppose if I say that you want to see the runs scored by Virat Kohli, so you plot a graph out of it. Like ठीक है कि ये आज के मैच में इतना रन स्कोर किया, ये मैच में इतना रन स्कोर किया. So the pictorial representation that you see is nothing but a signal. Signal gives you information. Fine. A signal can be a one-dimensional signal, a signal can be a two-dimensional signal, a signal can be a three-dimensional signal, depending upon the type of the signal. For example, if I say you talk about an image is a two-dimensional signal because you see that at a particular point you have a pixel, then a second point you have another pixel, then the value of the pixel gives a second dimension. You say these are the types of the signal. Fine. Proceeding forward, like for example, if I have an analog signal, what do you mean by analog signal? Analog signal वो होता है जहां पे हर पॉइंट पे मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू नजर आएगा. फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, over here if you see that this is 0, for example, this is 0, fine, and this is time scale. X axis corresponds to time scale. At 0 I have a value, for example this value corresponds to 5 volt. Okay, then we have another, for example, like this is like at 1 second at t equal to 1. Okay, we have another value, for example, like it increases like 5 to 7 volt, then it again increases to like 7 to 9 volt, and it goes on decreasing, then goes to negative. So I can say at each and every instant of time I have certain value. So when I have value at each and every available instant, we say it is an analog signal. Fine. Like for example, you can say a speedometer is an example of an analog signal, because when you press and when you apply a pressure on the accelerometer of your car, the speed changes gradually. है ना, स्पीड ग्रेजुअली चेंज होना शुरू होता है वहां पे. लाइक इट इज 0, देन गोज टू 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. इट डजंट गो एब्रुप्टली कि पहले 0 था, बाद 40, 60 हो गया. ऐसा फट से तो नहीं होता है. इट टेक्स टाइम. So when it takes time, when the things happens gradually, we call this as an analog signal. Similarly, if you talk about temperature, temperature rises gradually, temperature decreases gradually. So when the things happen gradually, when you have the value at each and every instant of time, we say that is an analog signal. I hope things are very much clear to you. So kindly read the lines over there. Any continuous signal has to maintain continuity, correct? Because it is analog signal. Then it is a time varying variable, representation of some other time variable quantity. It measures one quantity in terms of some other quantity. Examples are speedometer, or you can say the example of a radio volume. I hope the things are very much clear to you. Okay, can we proceed forward? Next we have is a digital signals. What is the meaning of digital signals? Like you all are like IT students, computer students, you might be doing what's the digital signals. Digital signal means it will be having only two states. Fine, like it could be either on or off. Light can be on or light can be off. The door can be switched. The door can be either open or door can be closed. Fine, it is as simple as that. तो डिजिटल सिग्नल्स का मतलब वो होता है जहां पे आपके पास में सिर्फ दो वैल्यू होगा, वन होगा या फिर जीरो होगा. इसका ऐसे सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल्स. ओके, like you can ask a student, where are you? He will say, I'm at home. Okay, now where are you? Sir, I'm at college. अभी वो होम से कॉलेज जाने के लिए उसने क्या रूट अडॉप्ट किया, whether he went through metro, whether he went through train, whether he went through his personal car, that information you don't have. What you have only, he is at home or he is at college. Understood what is the meaning of digital signals? एनालॉग सिग्नल के टाइम पे आपका से पूरा इन्फॉर्मेशन होता है कि देखो 7 बजे वो घर से निकला, 7:10 को दादर पहुंचा, 7:20 को बैंड्रा पहुंचा, 7:30 को अंधेरी पहुंचा, 7:40 को वो आजाद नगर मेट्रो तक पहुंच चुका था. Fine, this is the meaning of analog signal. But in case of digital, you only know he is at home or he is at college, like either 1 or 0. I hope the things are clear to you. Now the question to arise is that why I need to study both types of signal? Because we have seen here, if you see the examples, speedometer, if you see the example of a radio volume, if you see the example of like a photograph, right? A photograph, again, it is an analog signal because you capture light. Fine. Then you take the example of a temperature, if you take the example of an earthquake, these all are analog signals. तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है वो एनालॉग वर्ल्ड से घिरे हुए हैं. वी ऑल आर सराउंडेड बाय एनालॉग वर्ल्ड, राइट?
बट अभी आप अभी की बात करो, अभी हमारे सामने क्या है? वी हैव कंप्यूटर्स, वी हैव लैपटॉप, वी हैव स्मार्टफोन्स. दीज ऑल आर डिजिटल डिवाइसेस. These all devices have a processor. What is a processor? Processor comprised of what? Processor have a transistors integrated in that, and transistors works on binary numbers. It could be either in cutoff state, or it could be either in saturation state. Means जो मेरा कंप्यूटर है वो 1-0 समझने वाला है, जो हमारा एनालॉग वर्ल्ड है वो एनालॉग भाषा समझने वाला है. Means if I want to have a communication between the analog world and the digital devices available, don't you think I require an interpreter, I require a translator in between? Yes, and that translator is known as analog to digital converter. करेक्ट है ना? बिकॉज सी हमारा जो कंप्यूटर है जिसके ऊपर मैं एडोब फोटोशॉप चलाने वाला हूँ, जिसके ऊपर मैं कैमटेशिया स्टूडियो चलाने वाला हूँ, जिसके ऊपर मैं पिकासा चलाने वाला हूँ, जिसके जरिए मैं प्रोसेसिंग करने वाला हूँ, ये प्रोसेसिंग करने के लिए जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसिंग करने के लिए जो डिवाइसेस अवेलेबल है, ये डिजिटल भाषा समझता है. और मेरा जो डेटा है, जो है वो एनालॉग है. तो ऑब्वियसली सबसे पहले मुझ पर ये लाजमी होता है कि आई नीड टू कन्वर्ट the analog data to digital equivalent so that computer can understand the data and then I can process forward. I hope the things are clear to you. Okay, so we require an ADC, analog to digital converter. An analog to digital converter is an integrated circuit which will convert a signal from analog continuous, जो आपके सामने नीचे ग्राफ आ रहा है, to what? To digital or discrete format. Understood the meaning बेटा? क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? मुझे मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है? जो रेड कलर का जो सिग्नल था जो मेरे पास में अवेलेबल है, ये क्या? व्हाट इज रेड सिग्नल करस्पॉन्ड्स टू? दिस रेड सिग्नल करस्पॉन्ड्स टू टेम्परेचर. कि भाई एक आदमी बीमार है, तो बीमार होने की वजह से इसका मैंने टेम्परेचर मैंने रिकॉर्ड किया है कि भाई ठीक है उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है. ठीक है भाई, सुबह में उसको बुखार था, दोपहर में उसका बुखार और बढ़ गया, शाम में थोड़ा उसका बुखार कम हो गया, मैंने फिर जब रात के 8-8:30 बजना शुरू, उसका बुखार थोड़ा और कम होना शुरू हो गया, ठंडी लगना शुरू हो गया उसको. ये पूरा मैंने जो उसका जो डेटा था, टेम्परेचर का डेटा, मैंने पूरा एक ग्राफिकल फॉर्मेट में लिखा है. ये जो एनालॉग डेटा जो मैंने कैप्चर किया है बाय मींस ऑफ टेम्परेचर और बाय मींस ऑफ थर्मामीटर, अभी इसको मुझे कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए आई नीड टू कन्वर्ट टू डिजिटल इक्विवेलेंट. ये जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है. ठीक है, अभी आज के लेक्चर में हमको यही समझना है कि हाउ टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल टू इट्स डिजिटल इक्विवेलेंट, एंड फ्रॉम दैट डिजिटल इक्विवेलेंट जो कंप्यूटर आपको प्रोसेस करके देगा बाद में फिर, है ना? इट इज इजी. एनालॉग सिग्नल है, इसको आप कन्वर्ट करोगे डिजिटल इक्विवेलेंट के अंदर. ये कन्वर्ट करने के बाद में फिर आपका कंप्यूटर इसको जो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट क्या आएगा? वो भी डिजिटली आएगा. फिर ये डिजिटल को आपको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा. काय में कन्वर्ट करोगे इसको आप? बैक टू एनालॉग. अंडरस्टूड? एनालॉग टू डिजिटल, digital to digital, digital to analog. I hope you're understanding the link or the chain in between. समझे चेन कैसे चल रहा है? पहले मैंने डेटा कैप्चर किया. कैसे कैप्चर किया? यूजिंग व्हाट? यूजिंग द थर्मामीटर. जो कि मेरा डेटा कौन सा था? एनालॉग डेटा था. उसको पहले मुझे काय में कन्वर्ट करना पड़ा, डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ा. क्यों कन्वर्ट करना पड़ रहा है मुझे? सो दैट डेटा कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर ने प्रोसेस करने के बाद में जो आउटपुट दिया वो काय में आउटपुट दिया? डिजिटल में ही आउटपुट देगा वो, बिकॉज इट इज अ डिजिटल डिवाइस. अभी ये डिजिटल डेटा जो मुझे कंप्यूटर ने दिया है, क्या वो मैं समझ सकता हूँ? नहीं समझ सकता, बिकॉज आई नो व्हाट ओनली एनालॉग थिंग्स. सो अगेन आई नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम डिजिटल बैक टू एनालॉग. Understood? So again, analog to digital, digital to digital, digital to analog. Understood? So now अब सवाल ये उठता है कि सर आपने कोई चीज जो थी वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया. अभी डिजिटल से आप जब फिर से इसको एनालॉग में कन्वर्ट करोगे, तो डोंट यू थिंक द रिकंस्ट्रक्टेड एनालॉग शुड बी इक्वल टू ओरिजिनल एनालॉग? करेक्ट ना? ऐसे ही होना चाहिए ना. पता चला कि आपने दिया एनालॉग साइन वेव और बाद में फिर आपने जब कन्वर्ट करके निकाला फिर से एनालॉग जब बाहर आ रहा है वो कोसाइन हो गया. इट इज नॉट पॉसिबल ना कि ये क्या हो रहा है, मैं दिया क्या तो आ क्या रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि जो कन्वर्जन शुड बी वेरी एफिशिएंट. द एफिकेसी शुड बी सो स्ट्रांग इनफ कि दैट द रिकंस्ट्रक्टेड एनालॉग शुड बी इक्वल और शुड बी एटलीस्ट सिमिलर टू द ओरिजिनल एनालॉग फॉर्म. फाइन, ओके. तो ये चीज हमको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है आज के लेक्चर में. ओके, नाउ जस्ट हैव अ सेकंड पॉइंट देखिए आप. इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द एनालॉग वर्ल्ड ऑफ ट्रांसड्यूसर्स. जितने भी सेंसर्स है, ट्रांसड्यूसर्स है, दिस ऑल गिव्स योर एनालॉग आउटपुट.
जैसे आपको एग्जांपल दिया मैंने टेम्परेचर का, थर्मामीटर का, थर्मामीटर इज अ ट्रांसड्यूसर, इट विल गिव यू एनालॉग वैल्यू, राइट। कभी आपका टेम्परेचर 104 होगा, कभी 103 होगा, कभी 97 फ़ारेनहाइट होगा, कभी 99 फ़ारेनहाइट होगा, डिपेंड्स के आदमी के बुखार पे डिपेंड करता है, फीवर पे डिपेंड करता है। और ये एनालॉग सिग्नल को फिर मैं कन्वर्ट करूंगा डिजिटल वर्ल्ड में, सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग एंड डेटा हैंडलिंग। इज द थिंग्स क्लियर टू यू? कुछ भी डाउट है वहीं स्टॉप करने का। ओके फाइन। So now my main role, the aim of today's lecture is I have to convert from this red color to blue color. Understood? क्या करना है मुझे? मेरे पास में इनपुट में क्या है? रेड कलर है, एनालॉग सिग्नल है कंटिन्यूअस वाला, और उसको अब मुझे डिस्क्रीट में डिजिटल फॉर्मेट में ब्लू कलर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। ओके, सो फर्स्ट देयर आर टू स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज सैम्पलिंग एंड होल्डिंग, SH इसको आप बोल सकते हो आप शॉर्ट फॉर्म में। एंड सेकेंड इज क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग। अभी ये वर्ड्स को समझिए क्या है इसका मतलब। ओके, बिफोर आई प्रोसीड अहेड विद दिस, मैं आपको कुछ चीज दिखा देता हूं यहाँ पे, बिकॉज यू आर फ्रॉम कंप्यूटर IT स्टूडेंट्स, तो शायद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की इतना नॉलेज नहीं होगा। अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बट मेरा एक हैबिट होता है कि आई अज्यूम दैट योर नॉलेज इज जीरो। ठीक है, just give me a moment. I want to show you something very interesting. आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देता हूं मैं, तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा लाइक मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं और क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। I hope you might have came across this sinusoidal wave, है ना? और आपने कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा। How many of you know about this device और इलेक्ट्रिकल गैजेट, जो भी आपको बोलना है, इसके बारे में कभी सुना है आपने? What is this? Yes, yes, yes. Sir, it stores charge. वेरी गुड, इट स्टोर्स अ चार्ज। ये इसका सिंबल ऐसे कुछ बनाया जाता है, दोनों पैरेलल लाइंस, फाइन, एंड दिस इज जनरली केप्ट एज ग्राउंडेड। इसे ग्राउंड किया जाता है नीचे वाले को, और ऊपर वाले को हम लोग यहाँ पे कुछ सप्लाई देते हैं। अब बिल्कुल सही कहा सर आपने, इट स्टोर्स चार्ज, मतलब इट चार्जेस, कैपेसिटर चार्ज। जिस तरीके से आपकी फोन की बैटरी चार्ज होती है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से चार्ज होने वाला है। चार्जेस टू मैक्सिमम वोल्टेज अवेलेबल, Vmax, जितना जो भी मैक्सिमम वोल्टेज अवेलेबल रहेगा उसको उसके हिसाब से चार्ज करना शुरू रहेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम जो 7 बजे 5 वोल्ट आया, हाँ, 7:10 को 3 वोल्ट आया, 7:15 को 4 वोल्ट आया। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं सर, ये 7:20 को 6 वोल्ट आया, 7:25 को 4 वोल्ट आया। सो कैन यू टेल मी फ्रॉम 7 से लेके 7:30 बजे तक, सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक, व्हाट वाज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट अपीयर्ड? कौन सा मैक्सिमम वोल्टेज आके गया? 6. 6, करेक्ट। सो व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज? 6 वोल्ट। समझा आपको? Maximum voltage that was available in between 7 to 7:30 was 6 volt. That is the reason the capacitor has charged maximum of 6 volt. समझा आपको? कैपेसिटर सिर्फ एक ही काम करता है, इट स्टोर्स द मैक्सिमम चार्ज अवेलेबल इन द सर्किटरी। बस इतना आप समझिए, ठीक है। चलो अभी आपको मैं आगे लेके चलता हूँ कि अभी इसको मैं कैसे यूज करना है। ये पहला प्रॉपर्टी है कैपेसिटर का, इट चार्जेस टू द मैक्सिमम। सेकेंड, चार्जेस फास्ट। बस इतना ही चीजें याद रखिए आप, चार्जेस फास्ट, मतलब अगर चार्ज आ गया फटक से चार्ज होगा, फटाफट, फास्ट। इस तरीके से आपका फोन कैसे फटाफट चार्ज हो जाता है, लेकिन डिस्चार्ज होने के लिए टेक्स वेरी स्लोली, डिस्चार्जेस स्लोली, बहुत रो रो के स्लो स्लो डिस्चार्ज होगा। बस ये प्रॉपर्टी मुझे यूज करना है। चलो अभी आपको मैं लेके चलता हूं किधर और। अब सुनिए इधर क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग।
फाइन। ये ऐसी सप्लाई मैंने बना दिया, जैसे नॉर्मल सिग्नल, नॉर्मल वेवफॉर्म, आर्बिट्री वेवफॉर्म इसको बोल सकते हो। इट हैज नथिंग टू डू विद द कैपेसिटर, ये ऐसी आर्बिट्री वेवफॉर्म है। अभी इसके अक्रॉस में, इसके पैरेलल में मैंने कैपेसिटर लगा दिया। तो कैपेसिटर क्या कैसे चार्ज होगा वो आपको बताना है। अभी आप यहाँ पे जरा ध्यान देखिए, मैंने क्या लिखा, पहला पॉइंट, चार्जेस टू वी मैक्स। जब मैक्सिमम तक मुझे चार्ज करना है और फटाफट चार्ज करना है, और जब डिस्चार्ज का जब टाइम आएगा तब आई नीड टू बी लाइक मोर रेजिस्टेंट, लाइक धीरे धीरे स्लो 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 सोच के मुझे डिस्चार्ज करना है अपने आप को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स सी हाउ इट गोइंग टू हैपन, यू विल एंजॉय दिस, डोंट वरी। चलो स्टार्ट। सो येलो रेड कलर corresponds to original signal and this green color is the charging of my capacitor। तो कैपेसिटर यहां पर है, सबसे पहले चार्ज होगा, चार 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 चार, स्टॉप, मैक्सिमम हैज बीन अटेन्ड, है ना, मैक्सिमम हो गया। अभी क्या हो रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई नीचे जाना शुरू हो गया, फाइन। बट कैन आई गो डाउन along with this? No. Why? Because discharge has to be slow. तो ये स्लो स्लो डिस्चार्ज हो गए। first you will try to retain the charge। See, ये डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा है, बहुत आहिस्ते, स्लो 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 डिस्चार्ज। अभी क्या हुआ, now it has find that there is another peak coming up, charge fast charging, then again discharge। have you understood what is happening over there, sir? समझा आपको? चार्जिंग विल टेक फास्टर, डिस्चार्जिंग विल टेक स्लोअर। देखो ये एक फट से नीचे चला गया, रेड वाला, इट वेंट डाउन एट अ वेरी फास्टर पेस, बट दिस वाज गोइंग वेरी स्लो 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 स्लो, यहां तक आया, पता चला कि और एक पीक आ रहा है, फट से चार्ज फास्ट चार्जिंग इधर हो गया, यहाँ पे चार्ज हुआ, फिर वापस स्लो 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 स्टार्ट डिस्चार्जिंग। अंडरस्टूड? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर। नाउ यू कम ओवर हियर। अब आप इधर देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको। चार्जेस, are you able to see the charging? See, this is charging, then maintains the charge, then again charge to the maximum, maintains the charge. See, then again it is maintaining the charge here, then again discharging along with this. See, I'll tell you what is happening over here. See, now listen, अभी क्या करने वाले हम लोग। मेरा मेन एम क्या है, my first aim is that I want to convert from red color to this blue color। ओके, सबसे पहला काम मुझे ये करना है। ये करने के लिए आप पहले ये रेड कलर सिग्नल जो आपको इनपुट में नजर आ रहा है, इसको आप एनालाइज करो। यहां पे दो पार्ट है, पार्ट नंबर 1 इज एक्स एक्सिस, पार्ट नंबर 1 इज एक्स एक्सिस। सो दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टाइम, ओके, एंड on y-axis we have value, or you say the voltage, what जो भी आपको नाम देना है, वैल्यू बोलिए, वोल्टेज बोलिए, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए काम करना है क्या, सुनिए ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। सिंपल एग्जांपल, 7 AM, fine, 7:10 AM, 7:20 AM and 7:30 AM। color change, this is Churchgate home, okay, 7:10 he is at दादर फॉर एग्जाम्पल, हाँ, 7:20 बैंड्रा लिखा है यहाँ पर मैंने कि ये बैंड्रा पहुंच गया इधर, और 7:30 को जो है वो अंधेरी पहुंचा है। अभी आपको मैं दो केस दिखाने वाला हूं, एक है केस नंबर 1 और एक है केस नंबर 2। फाइन, सुनिए ध्यान से, इंटरेस्टिंग कहानी है ये। केस नंबर 1, मंडे का दिन है ये, ठीक है,
ऑब्वियसली ये मंडे है तो ये दिस हैज टू बी ट्यूसडे। प्रोफेसर है, यू कैन टेक माय नेम, नो वरीज। ओके, ये आदमी 7 बजे चर्चगेट से निकलता है और 7:30 बजे अंधेरी पहुंचने वाला है। ठीक है, इसका जो ड्राइवर है, और यू कैन से द सर्वेंट, और यू कैन से द पीए, जो भी आपको नाम लेना है, वो ड्राइवर या पीए जो ये है, वो उसको फोन करता है, कॉल्स एट 7 AM। साहब किधर हो? चर्चगेट। साहब किधर हो? दादर। साहब किधर हो? बैंड्रा। साहब किधर हो? अंधेरी। मीन्स नाउ दिस ड्राइवर, ये ड्राइवर का नाम है राजू। ये राजू के पास में डेटा के पास, इन टर्म्स ऑफ डेटा, व्हाट डज ही हैव द वैल्यूज ऑफ द पोजीशन ऑफ द लोकेशन एट दिस इंस्टेंस ऑफ टाइम। कौन से इंस्टेंस? 7 बजे, 7:10, 7:20, 7:30। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? अभी ये जो साहब है जिसका मैं नाम लिया नजीब, के साहब जो है, इनका एक भाई है, भाई का नाम है साकिब फॉर एग्जाम्पल। अब ये साकिब जो है, ये भाई जो है, वो राजू को पूछता है कि भाई 7:10 को कहां थे? 7:10 को दादर में थे। भाई जो है वो 7:20 को कहां थे? तो बैंड्रा में थे। भाई जो है वो 7:25 को कहां थे? व्हाट विल बी द आंसर? यस, कैन यू टेल मी गाइस, व्हाट विल बी द आंसर? कैन यू गिव द आंसर? बैंड्रा अंधेरी के बीच में कहीं थे। यस, यू विल से लाइक दिस कि हाँ, कि बैंड्रा अंधेरी के बीच में हो गए। हो सकता है कि बैंड्रा से गाड़ी छूटी ना हो सकता है कि रीच्ड अंधेरी वेरी फास्ट, हो सकता है कि वो इन बिटवीन हो गए। इन बिटवीन कहां? बट माहिम के पास में, सेंटा क्रूज, खार, वेर इज ही? सो टू अवॉइड दिस he will say, sir, I don't know. I will say I don't have the value for the same. He will report answer as 0. Instead of estimating, instead of interpolating, instead of approximating and create a problem for himself, he will say straight away, I don't know the value because I have not contacted him at 7:25. I only know the value between 7:20 and 7:30. समझा आपको क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, फाइन। तो ये जो था, जिस हिसाब से डेटा लिया गया है, मतलब 7 बजे एक, 7:10 को दूसरा, 7:20 को और 7:30 को, मीन्स ही हैव डेटा ओनली ऑफ 4 इंस्टेंट्स, 1 2 3 4। इसको मैं कहता हूं दिस इज डिस्क्रीट। फाइन। साकिब बहुत चिढ़ गया राजू के ऊपर। क्या है बोले, तेरे को छोटा सा काम दिया था, किस टाइप का नौकर है तो मैं तेरा पगार काट डालूंगा मैं। भाई गलती हो गई, कल से नहीं होगा। फ्रॉम ट्यूसडे व्हाट ही डिड, ही मेड अ वीडियो कॉल। बोले भाई फोन रखना नहीं तुम। बोले साकिब भाई बहुत भड़क जाते हैं मेरे ऊपर, तुम फोन ही नहीं रखना। बोले आई वांट टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी इंस्टेंट के वेयर आर यू। तो नाउ ही इज रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। 7:01 पे 1 सेकंड पे इधर, 7:01 पे दूसरे सेकंड पे यहाँ पे। So now you tell me कि this is what kind of data is being recorded? This is continuous data being recorded. समझ रहे हैं आपको क्या चल रहा है बेटा? समझा आपको? What's the meaning of discrete? What is the meaning of continuous? In continuous, I'll be taking data at each and every instant. हर instant पे data available मुझे चाहिए कि ये पॉइंट पे कहां था, ये पॉइंट पे कहां था, ये पॉइंट पे कहां था। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यू शुड नॉट टेल मी कि नो आई डोंट हैव डेटा। जैसा यहाँ पे आपने बोला इसमें डेटा नहीं है, वैसा आप नहीं बोल सकते हो, अदरवाइज आई विल डिडक्ट योर सैलरी। यू शुड टेल मी ईच एंड एवरी इंस्टेंट कि 7:10 पर 20 सेकंड पे 30 मिली सेकंड पे वेरेवर यू, आई शुड नो द डेटा। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस। अभी सवाल ये है कि आप बोलते हो कि आई वांट टू गेट डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट कैसे निकालोगे फिर आप? तो ऑब्वियसली डिस्क्रीट के लिए आपको सैंपल्स लेना पड़ेगा। सैंपल का मतलब क्या? आप बोलोगे ठीक है काम करते, इतना सारा डेटा तूने निकाल दिया है, तो एक काम करते हैं, ये वाला लेते 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 हैं। तो आई मीन टू से कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर सिलेक्टिंग द सैंपल एंड यू आर ड्रॉपिंग द सैंपल? कुछ तो बेसिस होगा ना। अब कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप ऐसा बोले कि अरे यार ये तो बहुत काम की चीज, सर छूट गया मेरे से।
पॉसिबल है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे अगर आप कोई क्राइम सीन अगर देखते हो कि 7:10 को दादर 7:20 को बैंड्रा और क्राइम इधर किधर हुआ है और वो पॉइंट को आपने छोड़ दिया because when you are converting from continuous to discrete, so how will you take care of that? Fine. So that is what the problem might occur. Fine. So that is secondary point what I'm trying to discuss with you. So कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि that you should understand कि how to take samples. अभी मुझे बताइए कि अभी ये पूरा डेटा मेरे पास में आ गया, फाइन, जो राजू ने लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा के अंदर में छाटना शुरू कर रहा हूँ कि ठीक है ये लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं। अगर हम यहाँ पे उंगली रखता हूँ ठीक है ये वाला लेते हैं, हाँ वेयर आर यू माहिम, हाँ इधर किधर है सर, यहाँ पे आजाद नगर है, हाँ इधर ये वाले पे सर, ये वाले पे ही वॉज एट मरीन लाइन्स, फाइन, मीन्स at each and every instant the data is available. So these ये जो मैं बता रहा हूं आपको, इसको हम कहते हैं instantaneous time, and these all are known as instantaneous values. समझ रहे फर्क क्या है? What's the meaning of instantaneous time? The time where you take the data. What's the meaning of instantaneous values? Instantaneous values मतलब वो value जो वो time instant पे लिया गया है। तो instantaneous time is t and instantaneous value is the value at that time instant. जैसे for example अगर आपको मैं कहूँ x of t, इसका मतलब क्या है? What is the meaning of x of t? This is the instantaneous value of x at time instant t. जैसे for example x of 2, मतलब what is the value of x at t equal to 2? What is the value of x at t equal to 720? तो आप बोलोगे the value of x at 720 is Bandra. समझे आपको? ठीक है। सो नाउ पहली चीज जो मुझे देखना है कि मुझे वैल्यूज चाहिए। कौन सा वैल्यूज चाहिए मुझे? कि व्हाट आर द वैल्यूज एट टाइम इंस्टेंट टी। ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं कैपेसिटर लगाने वाला हूं। कि कैपेसिटर का काम क्या है कि वो वैल्यूज को स्टोर करना शुरू करेगा, है ना। कि लाइक फॉर एग्जांपल, हाँ इतने टाइम पे इतना वैल्यू था, इतने टाइम पे इतना वैल्यू था। तो क्या करना है मुझे? पहले आई वांट अ सैम्पलर। सैम्पलर क्यों? सो दैट आई कैन सिलेक्ट कि हाँ अभी वैल्यू कितना है, यस अभी वैल्यू कितना है, यस अभी वैल्यू कितना है, यस अभी वैल्यू कितना है, यस। तो हाउ विल आई सिलेक्ट दोज वैल्यूज? सो फॉर दैट आई रिक्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच। स्विच कहां से आ गया भाई? सुनिए ध्यान से स्टोरी। आई रिक्वायर अ स्विच एज वेल। ये रहेगा वो स्विच, ठीक है, और ये रहेगा वो कैपेसिटर। पूरा समझने वाला है, सुनिए ध्यान से, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे है ए, ओके। जब ये स्विच प्रेस होगा, जब ये स्विच प्रेस होगा तो ये ए जो है ये अंदर की तरफ जाएगा, बराबर। दिस ए विल गो इनसाइड। व्हेन इट विल गो इनसाइड, व्हेन द स्विच विल प्रेस, जब ये अंदर की तरफ जाएगा, दिस ए विल बी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, एज सिंपल एज दैट, करेक्ट, ओके। अरे यू गाइस आर कंप्यूटर स्टूडेंट्स, वेरी फाइन। आपको ये पता होगा डी रैम, रैम आर ऑफ टू टाइप्स ना, एस रैम एंड डी रैम। तो डी रैम इज बेसिकली कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टोर्स द चार्ज। जो आपका डी रैम होता है, जो हमारे कंप्यूटर में लगता है, डीडीआर जिसको हम लोग कहते हैं, फाइन। तो दिस डी रैम्स जनरली मेड अप ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टोर्स द चार्ज। तो ये ए जब अंदर जाएगा, दिस ए विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, फाइन, ओके। सो नाउ अब ये स्विच क्या है? दिस स्विच इज एक्चुअली अ ट्रांजिस्टर। दिस स्विच इज एक्चुअली अ ट्रांजिस्टर। मतलब क्या होगा यहाँ पे? जब मैं बेस पर कलेक्टर और एमीटर, when at the base I give 5 volt, when at the base I give 5 volt, this collector emitter will get short circuit, करेक्ट है ना। हमने पढ़ा था ना कि अगर मैं एक बेस पे अगर मैं लॉजिक 1 दे देता हूं, so this will act like a switch, VCE will be equal to 0, कैपेसिटर, दिस ट्रांजिस्टर will be in the saturation mode, है ना। तो तब ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट का मतलब क्या हो गया कि ये वाला टर्मिनल जो है वो इसके साथ में कनेक्ट हो गया। अगर समझो इन कॉन्ट्ररी, अगर मैं 5 वोल्ट के जगह पे समझो अगर मैं 0 वोल्ट देता हूं, 0 वोल्ट का मतलब क्या है? दिस विल बी इन द कट ऑफ स्टेट। दिस मींस C and E will not be connected to each other, means they are completely as good as like open circuit. This means that this point will not be connected to this. So instead of switch I'll be having transistor over there, and transistor को on करने के लिए I require 5 volt, and transistor को ऑफ करने के लिए I require 0 volt. So I'll be giving like what? I'll be giving a square wave over there, like clock pulse देंगे वहां पे हम लोग,
कि जब ये 5 रहेगा तो ये ऑन होगा, जब 0 देंगे तो ये ऑफ होगा, 5 देंगे तो ऑन होगा, 0 देंगे तो ऑफ होगा। तो जब ये ऑन होगा तो वैल्यू अंदर जाएगा, जब ये ऑफ होगा तो वैल्यू अंदर नहीं जाएगा। जब वैल्यू अंदर जाएगा तो कैपेसिटर चार्ज होकर वैल्यू स्टोर करेगा, और जब वो नहीं जाएगा तो कैपेसिटर विल रिमेन विद द प्रीवियस द लास्ट चार्ज। इज दिस थिंग्स क्लियर टू यू? क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी अब सर यहाँ पर आइए, आपको और क्लियरिटी मिलेगा। इधर आके देखिए, ये इनपुट सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है यहाँ पे। ये वो स्विच मैंने बनाया जो आपको मैंने बताया, दिस इज स्विच, दिस इज दैट क्लॉक सिग्नल यू कैन सी एट द टॉप। फाइन, ये क्लॉक दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्लॉक दिख रहा है यहाँ पर। मतलब जब यहाँ पे लॉजिक 1 होगा तो ये स्विच प्रेस हो जाएगा, जब मैं क्लॉक जब 0 रहेगा तो वो टाइम पर स्विच विल बी ओपन। फाइन, ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस नाउ when the switch is on, when the switch is on, the switch जब ऑन रहेगा तो वो टाइम पे क्या होगा, कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। क्या आपको चार्जिंग दिख रहा है? धीरे 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 ऊपर चला गया। अभी ये पॉइंट पे क्या, व्हाट हैपेंड एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे क्या हो गया कि मैंने सैम्पलर को ऑफ कर दिया, मतलब मैंने स्विच को उठा दिया। तो स्विच को उठाने पे विल द करंट फ्लो इनसाइड नाउ? नो। So will the capacitor discharge? No, because capacitor now will hold the charge. पहले कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ, जब साथ में था तो वो चार्ज होना शुरू हुआ, इट वाज चार्जिंग दिस। अभी ये हट गया, दिस इज नाउ गॉन, नाउ दिस विल स्टोर द चार्ज, नाउ कैपेसिटर विल स्टोर द चार्ज। तो ये कैपेसिटर ने अपना चार्ज है वो स्टोर करके रखा है, कैपेसिटर इज स्टोरिंग द चार्ज। फिर स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया तो ये फट से चार्ज हो गया, इट चार्ज। स्विच इज ऑफ, स्विच अगर ऑफ हुआ तो इट इज नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, इट इज स्टोरिंग द चार्ज। फाइन, देन व्हाट हैपेंड, देन अगेन टर्न ऑन द स्विच। अभी सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई कम कम होना शुरू हो रहा है, कम कम तो इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज हो गया ये। जस्ट ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग व्हेन द रेड लाइन, सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूं मैं, व्हेन द रेड लाइंस एंड द ब्लू लाइन आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर। क्या बोला मैंने वर्डिंग्स को? जब रेड और ब्लू लाइन जब आपस में कोइंसाइड करता है तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होता है। और जब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हो वो टाइम पे क्या समझने का कि ये जो स्विच है ये ओपन है और कैपेसिटर ने चार्ज को होल्ड करके रखा है। इज इट क्लियर टू यू सर? When red line and blue line is coinciding with each other, at that time क्या बोलने का अपन, जब दोनों एक दूसरे में कोइंसाइड कर रहा है तो कि स्विच जो है वो क्लोज किया गया है, सप्लाई जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है और कैपेसिटर जो है वो साथ साथ चार्ज हो रहा है। ठीक है, और जब आप ये स्लीपिंग लाइन जब देखते हो, इसी यहाँ पे स्लीपिंग लाइन आपको दिख रहा है, ये स्लीपिंग लाइन दिख रहा है, ये स्लीपिंग लाइन दिख रहा है, ये स्लीपिंग लाइन दिख रहा है, वो टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि now the switch is off, supply is not going inside and capacitor is holding that charge. Is it clear to you? That is the reason you get such kind of waveform. समझे waveform कैसे आया and why this circuitry is known as sampling and hold. Sampling तब होगा जब ये switch close होगा, और होल्ड कब करेगा, जब ये स्विच ओपन होगा और कैपेसिटर ने वो चार्ज अपने अंदर सीमित करके रखा है, होल्ड करके रखा है। जिस तरीके से आपके कंप्यूटर का रैम डेटा स्टोर करके रखता है टेम्पररीली, करेक्ट, डी रैम अगर आपने पढ़ा होगा तो। आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। एनी कंफ्यूजन एट दिस पॉइंट, आस्क मी हियर इटसेल्फ। समझा आपको क्या चल रहा है सर? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। सिंपल है सर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू, व्हेन रेड लाइन एंड ब्लू लाइन आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर, दिस मींस द सैम्पलर इज ऑन, मतलब स्विच ऑन किया हुआ है और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक है, जब आपको स्लीपिंग लाइन दिखता है ऐसा, ये स्लीपिंग लाइन जो दिख रहा है हम लोग को, ये स्लीपिंग लाइन है, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन है, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन है। स्लीपिंग लाइन का मतलब ये है कि स्विच जो है वो प्रेस नहीं किया हुआ है, स्विच जो है वो ओपन की तरफ है और कैपेसिटर ने अपना चार्ज पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है कि दिस इज द चार्ज आई एम हैविंग, आई कांट डिस्चार्ज नाउ। जिस तरीके से आपका रैम डेटा स्टोर करके रखता है, तो ये मेरे पास में अब डेटा आ गया। दिस इज द आउटपुट ऑफ अ सैम्पलर और अ होल्डर, व्हाट यू आर से। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज इज ओवर। फाइन, अभी भी वो मेरे पास में क्वेश्चन क्या बचा है कि ये जो अपने मुझे स्विच अपन जो ऑन ऑफ जो कर रहे हैं, कि स्विच यहाँ पे ऑन किया तो चार्ज हुआ, फिर स्विच यहाँ पे ऑफ किया तो स्लीपिंग लाइन आया, फिर स्विच ऑन किया तो चार्ज हुआ,
फिर स्विच को ऑफ किया तो फिर ये फिर से स्लीपिंग लाइन आया, फिर स्विच को ऑन किया तो ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। आप क्या बेसिस पे कर रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जब ये राजू क्या कर रहा था, ये राजू ने भी वही किया था ना कि ही हैज डिसाइडेड एट हिज ओन डिस्क्रिशन कि ठीक है मैं 7 बजे फोन करूंगा, फिर 7:10 को कॉल करूंगा, 7:20 को कॉल करूंगा, 7:30 को कॉल करूंगा। जबकि क्या बोला गया था, यू शुड हैव डेटा एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, करेक्ट ना? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेकेंड टाइम उसने क्या किया, ट्यूसडे के दिन उसने 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 वीडियो कॉल करना शुरू कर दिया कि आई वांट टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट। अब बाद में फिर उसने हमने यहाँ पे साकिब ने डिसाइड किया काम करते हैं कि मैं ये लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, लाइक आई एम टेकिंग सैंपल। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ही इज टेकिंग, यहाँ पे लाइक वी आर टेकिंग सैंपल एट दिस पॉइंट, लाइक ऑन ऑफ। तो ये भी हमको पढ़ना है कि कब मुझे सैंपल लेना है, कब मुझे सैंपल नहीं लेना है, लाइक हाउ दे हैव टू बी टेकन। तो ये सैंपलिंग थ्योरम इसको कहा जाता है, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इसको हम लोग। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड नाउ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सी मैं थोड़ा इसको और आपको क्लैरिटी के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। सर एक डाउट था सर, एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाओगे क्या प्लीज? यस 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 सर आपने बोला कि वो जब ब्लू एंड रेड कोइंसाइड हो रहा है, मतलब switch is closed and sampler is on, so that means the capacitor is gaining charge. If you see the first before the first peak, वो charge gain कर रहा है. yes But आपने बोला कि capacitor loses charge quite slowly, तो फिर why is it coinciding on the right hand side of the peak as well? yes I'll showcase it to you. See, यहाँ तक चार्ज हुआ, फाइन, फिर यहाँ पे इट इज होल्डिंग द चार्ज होल्ड। यहाँ पे इट इज फॉलोइंग दिस, ये क्वेश्चन है ना आपका कि ये डिस्चार्ज हुआ, इट इज गोइंग थ्रू दिस बिकॉज इट हैज टू मेंटेन द एफिकेसी इन दैट वे। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन I'll tell you, the capacitor is taken in such a way that it follows the original waveform. It is taken in such a way. The value of the capacitor, जो फैराड्स का कैपेसिटर आपको लेना है, उस तरह से लेके लिया जाता है so that it follows the original waveform, because यहाँ पे the main aim is that we have to follow the original waveform so that it can sample and hold the charge accordingly. It is taken in such a way. Okay sir, thank you sir. Okay fine. See, अभी यहाँ पे देखिए आप, ये था कंटिन्यूस सिग्नल रेड कलर का, फाइन। अभी यहाँ पर मैंने सैंपलिंग ले लिया, जिस तरीके से राजू ने सैंपलिंग लिया था, 7 बजे कॉल किया, 7:10 को कॉल कर रहा है, 7:15 को कॉल कर रहा है, तो सेम सैंपलिंग इट इज हैपनिंग ओवर हियर। यहाँ पे मैं डेटा लेने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे। ये कहने का मतलब ये है कि दैट एट दिस पॉइंट द स्विच विल बी ऑन, अंडरस्टूड? एट दिस पॉइंट द स्विच विल बी ऑन, at this point the switch will be on, because ये point पर जब मैं स्विच जब ऑन करूंगा the capacitor will get the new value. At this point the capacitor will get the new value. At this point the capacitor will get the new value, and in between these points the capacitor will hold the charge. समझा आपको? At this point, in between these two points, ये दोनों पॉइंट के बीच में कैपेसिटर जो है वो चार्ज को होल्ड करेगा, और ये पॉइंट जो है दिस इंस्टेंसेस, these are the time instances where it will get the new value of the analog signal. Understood? Okay, चलो देखिए, same thing is happening over here. यहाँ पे न्यू वैल्यूज लेना शुरू कर रहा है वो, तो ये ब्लू कलर का हमको पॉइंट्स दिख रहा है, ठीक है, परफेक्ट। द सेम थिंग, इट इज होल्डिंग द चार्ज इन बिटवीन, taking the new value, holding the charge in between, holding the new value, taking the charge in between. Now the question अपने पास में अभी ये आने वाला है आगे चल के कि ये जो आपने डिसाइड किया टाइम इंटरवल, ये कौन से बेसिस पर डिसाइड किया? जैसे राजू ने जो डिसाइड किया था वो 10 मिनट का गैप रखा था, 7 बजे कॉल कर रहा है, 7:10 को कॉल कर रहा है, 7:20 को कॉल कर रहा है, 7:30 को कॉल, बीच में 10 मिनट क्यों नहीं कॉल कर? व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द गैप? ही डिसाइडेड कि मैं 10 मिनट का मैं गैप रखता हूं, तो वो गैप कैसे डिसाइड करना है वो हमको इस पे वर्कआउट करेंगे हम लोग आगे चल के। सुनिए ध्यान से यहाँ पे ना, पे अटेंशन, दिस इज द ओरिजिनल सिग्नल इन फ्रंट ऑफ यू, ओके फाइन। ये fs corresponds to frequency of the signal. fs is the frequency of the signal. Now let me ask you, what do you mean by frequency? What do you mean by frequency? Yes, can anybody tell me frequency का मतलब क्या होता है? Yes. Number of times the thing is occurring or a wave is occurring. Exactly.
इट इज एज गुड एज रिपीटेशंस। अभी देखिए यहाँ पे देखिए कैसे पढ़ने का इसको, फ्रीक्वेंसी को। ये एक पॉइंट है। अभी मुझे बताओ आप कि ये सेम चीज फिर कभी आने वाला है। ये तो नीचे की तरफ चला गया सर, फॉरगेट अबाउट दिस। सेम चीज, करेक्ट? तो कैन आई से कि फ्रॉम ईयर टिल ईयर, आर यू एबल टू सी सर? फ्रॉम ईयर टू ईयर दिस इज माय वन साइकिल। वाओ, करेक्ट, खत्म। अभी यहां से लेके यहां तक सेकेंड साइकिल हो गया, यहां से लेके यहां तक थर्ड साइकिल हो गया, यहां से लेके यहां तक मेरे लिए फोर्थ साइकिल हो गया, यहां से लेके यहां तक मेरे लिए फिफ्थ साइकिल हो गया। समझ रहे आपको क्या चल रहा है? मैं फ्रीक्वेंसी कैसे दिखा रहा हूं आप लोगों को? सिंपल है, एक हिंदी का प्रोवर्ब याद रखने का, जहां से शुरू वहां पे अंत। तो आपका शुरू कहां से हुआ था? यहां से स्टार्ट किया था आपने, तो सी द नेचर, कहां से स्टार्ट कर रहे हो आप? ये स्टार्ट किया, तो सेम टू सेम कहां आ रहा है आपको? कहां अंत हो रहा है? इधर अंत हो रहा है। तो दिस इज द वन साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल एंड सो ऑन। नाउ कम ओवर हियर। ये स्लाइड थोड़ा बाद में देखते हैं हम लोग। नाउ यू गाइज कम ओवर हियर डायरेक्टली। अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने क्या किया, ये है फर्स्ट, ठीक है, एंड दिस इज सेकेंड, है ना? फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। मैं साइकिल्स ड्रॉ कर रहा हूं बच्चा। दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। समझ रहे हैं? अभी ये और ये एक साइकिल हो गया। नाउ टेल मी, इन बिटवीन दिस साइकिल मैंने कितना सैंपल लिया है? सिर्फ एक, ओनली दिस वन। मतलब ये तो लिया ही मैंने, तो ओरिजिनल है ये, तो स्टार्टिंग पॉइंट है ये एक। तो कैन आई से एक साइकिल था और मैंने ये एक लिया। फिर अभी ये और ये दोनों के बीच में कितना सैंपल लिया गया है? सिर्फ ये वाला एक, वन। अभी ये साइकिल और ये साइकिल, ये वाला, ये दो, एक साइकिल, तीसरा साइकिल। तो बिटवीन वन साइकिल हाउ मेनी सैंपल सर? ओनली वन सर, ओनली वन सैंपल। बिटवीन ईयर टिल ईयर हाउ मेनी सैंपल? ओनली वन सैंपल। समझ रहे क्या चल रहा है? मतलब यहाँ पे द पर्सन इज ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली, लेकिन जो मैं फोन जो कर रहा हूं, जो मैं सैंपल लेने वाला वो इंस्टेंट पे, तो कितने बार फोन किया वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन बिटवीन वन साइकिल यू आर टेकिंग ओनली वन सैंपल। फाइन। नाउ मैंने ये डेटा लिया, एक डेटा मैंने यहाँ पे लिया, एक डेटा मैंने यहाँ लिया, एक डेटा मैंने यहाँ पे लिया, एक डेटा मैंने इधर लिया। अब ये सब चीजों को मैंने जोड़ दिया। After joining, guys, now you tell me the red color waveform which I have got right now is reconstructed. Is reconstructed, correct? Na? Is reconstructed same as the original black color? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. क्वेश्चन समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Is it same or no? Yes, sir. It is No same. ना बेटा, it is same. कहाँ से सेम मेरे बच्चा? Sir, It is not same ना? सर क्योंकि वेव फॉर्म not में same. मार्क किया है ना उसको। सुनो सुनो सुनो, क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस इज द वेवफॉर्म, ठीक है। और फिर हम लोगों ने डेटा जो लिया वो यहाँ पे हम लोगों ने इसका सैंपल लिया। सैंपल कैसे लिया? एक पॉइंट इधर लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। और फिर जब इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, व्हेन आई ट्राई टू ज्वाइन देम, तो ज्वाइन करने पे क्या हुआ? डोंट यू थिंक इट इज नॉट सेम बेटा? सी आई विल टेल यू व्हाट द मीनिंग ऑफ सेम। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ओरिजिनल वेवफॉर्म जो है वो ये वाला है बेटा, द ब्लैक कलर। see how it is so smooth sinusoidal waveform, and see the red वाला waveform, it is so shabby। ये इधर शुरू हुआ, फिर यहाँ पे इसका नेगेटिव पीक आया, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ इसका पॉजिटिव पीक आ रहा है। मतलब इसका इवन एक साइकिल भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। समझ रहा है आपको? Yes, sir. यहाँ पे ओरिजिनल वाले का
यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गया, और जो नया वाला जो मुझे मिला है उसका एक साइकिल का जो स्टार्ट जो है वो इधर है और दूसरा किधर आ रहा है रे, इट इज कमिंग समवेयर ओवर हियर। गॉट इट? मतलब जहां पे मेरा ओरिजिनल साइकिल का एक साइकिल खत्म हो गया और उसका अब तक, और उसका जो सेकंड वाला जो है उसका साइकिल अब तक एक मिल ही नहीं रहा है मुझे। गॉट इट? मींस कहने का मतलब ये है कि द रिकंस्ट्रक्टेड वेव फॉर्म इज ऑफ वेरी लो फ्रीक्वेंसी। The reconstructed waveform is of very low frequency compared to original one. So this problem occurs when you take a very low sampling rate, and this is what we call it as aliasing effect. समझा आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? So if you take a sampling rate very low, so you were here you observe, देखिए यहाँ पे आप देखिए ना, ये ब्लैक वाला जो वेवफॉर्म है उसका एक साइकिल किधर आ रहा है, यहाँ पे शुरू किया आपने, यहाँ पे खत्म हो गया। अभी जो रेड वाला जो वेवफॉर्म जो आपने बनाया रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद में, उसका साइकिल किधर है, यहाँ से ये शुरुआत है उसकी स्टार्ट पॉइंट, उसका एंड पॉइंट कहाँ पे लूं मैं? इट इज कमिंग समवेयर ओवर हियर। डोंट यू कैन यू से दैट द रेड कलर का वेवफॉर्म का साइकिल का जो विड्थ है is very large, fine, is very large compared to original waveform. So can we say, since the time is very large, frequency is very less, so here what problem occurs, that when you take a sampling rate very less, then the reconstructed waveform will have the frequency very low compared to original frequency, and this problem is known as aliasing effect. Is it clear to you, sir? नहीं समझा तो मुझे पूछिए, I'll explain you. No worries about it. समझा सर। ठीक है, चलो। मतलब क्या मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर मैं सैम्पलिंग रेट कम लेता हूं, तो कम मतलब कितना लिया मैंने? एक साइकिल में एक ही लिया ना मैंने। सी, ये मेरा साइकिल था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये पॉइंट पे मैंने सैंपल लिया। फिर ये सेकंड साइकिल स्टार्ट हो गया, सेकंड साइकिल का ये सैंपल हो गया, थर्ड साइकिल का ये सैंपल हो गया, फोर्थ साइकिल का ये सैंपल हो गया, फिफ्थ साइकिल का ये सैंपल हो गया, सिक्स साइकिल का ये सैंपल हो गया। और फिर ये सैंपल को जब मैंने ज्वाइंट किया तो रिकंस्ट्रक्टेड वेवफॉर्म इज हैविंग वेरी लो फ्रीक्वेंसी compared to original frequency. So this problem is known as aliasing effect. This problem occur when you have very low sampling rate. एक काम करते हैं, फिर सैम्पलिंग रेट को इंक्रीज करते हैं। चलो, बढ़ा दिया। क्या किया मैंने? यहाँ पे कितना रखा था सर मैंने? एक साइकिल एक सैंपल। अब क्या कर रहा हूं मैं, सुनिए, अब मजा आने, अब आपको समझेगा धीरे धीरे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सी, आई विल डू वन थिंग, फर्स्ट आई टेक अ पेन, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माय फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, करेक्ट है? यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड साइकिल हो गया, ये अपना फोर्थ साइकिल हो गया, ये हमारा फिफ्थ साइकिल हो गया, एंड सो ऑन। नाउ फर्स्ट साइकिल, हाउ मेनी सैंपल्स आर देयर सर? ये छोड़ दीजिए, चलो यू कैन इग्नोर दिस। हाउ मेनी सैंपल्स हैव टेकन? 1 and 2। दिख रहा है आपको? तो एक साइकिल है, लेकिन सैंपल कितना लिया मैंने? 2 लिया सर। फर्स्ट केस में कितना लिया था मैंने? एक साइकिल में एक ही सैंपल लिया था। अब कितना ले रहा हूं मैं? चलो सेकंड साइकिल की बात करो। हाउ मेनी सैंपल्स आई एम टेकिंग सर? 1 and 2, again 2, again now you come over here sir, 3. How many third cycle, how many samples I am taking in third cycle? 1 2, fourth cycle, how many samples sir? 1 2. Fifth sir, how many samples sir? 1 2. So can I say now I have increased the sampling rate? पहले मैं क्या कर रहा था? एक साइकिल एक सैंपल, अभी एक साइकिल 2 सैंपल, अभी मैं इसको जोड़ दिया, and I am joining these points, join. Now you tell me, is my reconstructed waveform matching with my original waveform? Yes or no? Yes. How many of you say yes? How many of you say no? ये तो भाई देख के पता चलता है कि सर नो, इट इज नॉट मैचिंग, क्योंकि ओरिजिनल वेवफॉर्म तो ब्लैक कलर का मस्त चल रहा है मक्खन की तरह, और बाकी दूसरा जो अपने बनाया वो कुछ भी बनाया सर, एकदम क्या समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है। इट इज शायद, इट इज कंप्लीटली, आपने उसको गाली भी दिया, इट इज आलिया भट्ट, इट इज एलियासिंग इफेक्ट।
एनीवेज चलो अभी इसका बोलो आप, ये बोलते सर इट इज मैचिंग, डू यू थिंक इट इज मैचिंग? यस और नो? Yes. कोई तो होगा जो बोलेगा नो, थोड़ा ध्यान से देखिए। So not completely. यस, व्हाई वेरी गुड बेटा, व्हाई? So because if we see there's a straight line from in the waves one and one between the points, and if we see the waves there are kind of wavy, so like क्या बात है बेटा, वेरी गुड बेटा, आई अप्रिशिएट। सिंपल है सर, जो ब्लैक कलर का वेव फॉर्म है वो साइन वेव है, और जो ऑरेंज कलर का वेव फॉर्म देख रहे हो इट इज ट्रायंगुलर, करेक्ट ना? इट इज ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है ना, इट इज नॉट सिमिलर। वहां पे ट्रायंगल्स नजर आ रहा है मुझे, इट इज ट्रायंगुलर। यस, फ्रीक्वेंसी सेम, नो डाउट, शेप इज सिमिलर। Why similar? Why it is not same? Because the black color जो था, जो ओरिजिनल जो मेरा ब्लैक कलर है वो साइन वेव है, और जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर, इट इज व्हाट? इट इज ट्रायंगुलर, इट इज नॉट साइन। तो सोल्यूशन क्या? अभी यहाँ पे आपने एक साइकिल एक सैंपल लिया था, एक साइकिल दो सैंपल लिया, अब मुझे बताओ क्या करना है मुझे? Sir, increase the number of samples a lot. एग्जैक्टली, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। तो ये हो गया आपका पहला सैंपल, आई मीन फर्स्ट साइकिल, ओके। ये आपका हो गया दूसरा साइकिल, ठीक है, ये हो गया तीसरा, एंड सो ऑन। चलो काउंट करो, हाउ मेनी सैंपल्स आई एम टेकिंग पर साइकिल बेटा? हाउ मेनी सैंपल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, करेक्ट। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहा है आपको क्या चल रहा है? So what is the final conclusion out of this? So you have to take more samples, high samples, so that the reconstructed waveform will look exactly as the previous or the original one. क्या बोलता है ये सैम्पलिंग थ्योरम? कि that अगर आपका मैसेज फ्रीक्वेंसी fs है, जैसे यहाँ पे fs था ना, अगर fs है, मैसेज फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी fs है, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर देन द डबल ऑफ द मैसेज फ्रीक्वेंसी। समझा आपको? मतलब अगर इसका फ्रीक्वेंसी 10 है, इसका फ्रीक्वेंसी अगर 10 है, तो आपको मोर देन 20 आपको लेना पड़ेगा सैंपल्स, more than 20. Therefore, E upon 2, like if the sampling frequency is equal to twice of fs, so you have to take double, है ना? देखो यहाँ पे आपने 1 था, 1 साइकिल 1, तो ये प्रॉब्लम आया। जब आप सेम लोगे, इक्वल, अगर इक्वल लेते हो तो आपको सिमिलर आएगा, और मोर देन अगर आप लेते हो, मोर देन डबल, तो यू विल गेट लाइक प्रॉपर। अंडरस्टूड? से जब लेस रखा, एलियासिंग आता है। अगर आप इक्वल टू डबल लोगे, इक्वल टू डबल, तो ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और अब मोर देन डबल लोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो नाइक्विस्ट क्या बोलता है? नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी, द सैम्पलिंग थ्योरम सेज कि व्हेनेवर यू वांट टू टेक अ सैंपल, यू शुड टेक मोर देन द डबल ऑफ द मैसेज और सिग्नल फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर टू यू सर? दिस इज व्हाट इज द एलियासिंग इफेक्ट, यू शुड नो दिस, ठीक है? You have to sample at the high rate, so then only can avoid the aliasing effect. Fine. चलो अभी यहाँ तक तो पहुंच गए आप। अभी यहाँ पर आने के बाद में what have you seen that you have, अभी मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। सुनो, now this is x axis, करेक्ट? अभी x axis पे आपने क्या निकाला? वैल्यूज निकाल दिया, ठीक है? एक्स एक्सिस पे आपने डिसाइड किया सबसे पहले कि मुझे इंटरवल क्या रखना है, सैम्पलिंग इंटरवल क्या रखना है, कौन से पॉइंट पे, कि भाई 10-10 मिनट का गैप रखना है कि 15 मिनट का गैप रखना है, वो आपने देखा बाय हुम? बाय सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम से आपको पता चलता है कि गैप कितना रखना है। क्या आप अगर ज्यादा आप गैप रखोगे यहाँ पे, ज्यादा अगर आप गैप रखोगे तो आपको एलियासिंग आएगा। अगर आप गैप को और कम करना शुरू करोगे तो आपको फिर परफेक्ट आप वेव फॉर्म आप ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन नॉट कीप मोर गैप्स, 10 मिनट गैप रखना पॉसिबल नहीं है। जैसा गैप रखा था ना उसने, राजू ने, कि भाई 7 बजे कॉल कर रहा है, 7:10 से कॉल कर रहा है, तो यू शुड रिड्यूस द गैप सो दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट अ वेव फॉर्म एंड दैट शुड बी रिजेंबलिंग द ओरिजिनल वेव फॉर्म। ये आप यहाँ पे समझ जाते हो। तो एक्स एक्सिस पार्ट इज ओवर। नाउ कमिंग टू वाई एक्सिस।
अभी ये एक्स एक्सिस से आपको क्या पता चलेगा कि ये वाले पॉइंट पर at t equal to 0 this is the value, at t equal to 2 this is the value, at t equal to 3 this is the value. अब ये वैल्यू को नाम तो देना पड़ेगा ना कि क्या कितना वैल्यू आया, क्या आया। तो सुनो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग। एक बार y एक्सिस को ध्यान से देखो, फिर आई एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर। 2 स्क्वायर, व्हाट इज 2 स्क्वायर? 4। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अच्छा, अभी 2 क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 means now I am dividing y axis into 8 equal parts, and if it is 2 raised to 2 then I am dividing y axis into 4 equal parts. समझ रहे क्या चल रहा है? मतलब if I increase number of power of 2 I will get more number of parts in case of y axis. तो क्यों पार्ट्स करना है ये वो हम लोग समझते हैं। अभी आप यहाँ पर आइए, ये देखो। यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, सुनो। यहाँ पे मैंने y एक्सिस को 8 पार्ट में डिवाइड किया, है ना। सबसे पहले मैं क्या पूछ रहा हूं उधर कि कितना रखना है मुझे, 2 बिट 3 बिट। लेट्स टेक 3 बिट फॉर एग्जांपल। तो n इज इक्वल टू 2 रेज टू 3। व्हाट इज 2 क्यूब? 2 क्यूब इज व्हाट? 8। फाइन। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट आई एम गेटिंग इन केस ऑफ हियर? So maximum voltage I'm getting is 10 for example. Suppose ये 0 से लेके 10 तक जा रहा है, 0 to 10 वोल्ट का ये एनालॉग सिग्नल है। तो 10 minus 0 divided by 8, कितना आंसर आया? 10 minus 0 divided by 8 comes out to be what? 1.25, है ना। 1.25 वोल्ट यहाँ पे आपको आंसर आया। So since I got 1.25, now I'll start making this table. 0 to 1.25, 1.25 to 2.5, 2.5 to 3.75, 3.75 to 5 and so on till 10. नाउ अब क्या करने का सुनो, वेरी इजी। चलो 7 बजे वो फोन करेगा। किधर है भाई? भाई द वैल्यू इज 5.25 वोल्ट। ओके 5.25 वोल्ट किधर है भाई? 5.25 वोल्ट। क्या आंसर आया? 4। क्या रिपोर्ट करूंगा मैं? 1 0 0। Why 1 0 0? Because 4 corresponds to 1 0 0 ना, है ना। 4 corresponds to 1 0 0. So I will report the digital equivalent as 1 0 0. चलो next value। हाँ अभी कितना वैल्यू आ रहा है सर? अभी आ रहा है 6.32। 6.32 ओके 6.32 is in between this. Okay, so it is now 101. समझ रहे क्या कैसे बात कर रहे हैं हम लोग? अच्छा now what is the next value? Sir, now it is 3.95. Okay, 3.95 मतलब 3. Okay, so it is now 011. Got it? How the quantization is happening? मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर? सिंपल है कि पहले मैं सैम्पलिंग करूंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि वैल्यू कितना है, फिर वो वैल्यू का वोल्टेज कितना है उसके हिसाब से उसका हम लोग कोडिंग दे रहे हैं। समझा आपको व्हाट इज क्वांटाइजेशन? In case of quantization, what we are doing is we are separating the input signal into discrete states. Fine. And then we are assigning a unique digital code to each state for the microprocessor. So this is how the analog to digital conversion takes place. जैसे यहाँ पे आपने देखा था ना ये वाला। So sample hold से आप sampling करोगे, it should be ideally twice the signal frequency. And then you have to take the voltage value and then you have to quantize it as per that table and then you have to assign the encoded value to it. And this is how you convert from analog to digital equivalent. देखो पहले ऐसा था, फिर आपने सैम्पलिंग किया, सैम्पलिंग करने के बाद में फिर आपने वो वैल्यू को उठाया, फिर आप बोले कि हाँ अभी वैल्यू कितना है? 5 वोल्ट। अभी कितना है? 5.29। अभी कितना है? 6.34। अभी कितना है? 7.25। अभी कितना है? 5.28। तो ये जो वैल्यूज आप बोल रहे हो 5.25 5.28, ये वैल्यूज को आपने टेबल के जरिए इसको आपने कोडिंग करना शुरू कर दिया। हाँ 5.25 मतलब इट कम्स एट 4। व्हाट इज 4? 4 इज व्हाट? 100। फाइन। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट गिविंग द encoding to it, and this is how you generate the binary equivalent. So sampling rate is this, which gives you the which decides this, like the accuracy. Sampling decides the accuracy and this quantization will decide your resolution. कि देखो सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? I'll tell you. यहाँ पे इशू क्या होता है कि that when you say 3.76 you are at 3, when you say 4.25
यू आर अगेन एट 3, बिकॉज आपने 8 का ही रखा है ना सर, इसलिए इशू हो रहा है। अगर आप ज्यादा करते हो, लाइक यू टेक 2 raised to 4 और 2 raised to 5, तो एट इफ यू से 3.25, तो आप 3.25 को कितना आया आपको 2 आया फॉर एग्जाम्पल। बट व्हेन यू से 3.29, तो हो सकता है आपको 3, अब 3 बोलोगे वहां पे, so like you get good amount of resolution if you increase the number of bits। अब यहाँ पे आपने 3 रखा है इसलिए आपको ऐसे आया। अगर आप इसको अगर आपको आप और कम करते हो, you will get very poor resolution। So you have to decide quantization in such a way so that you get good amount of this। So this is a formula like V max minus V min upon n to 10 minus 0 upon 8। This is how you can work on it। Is this clear to you? समझा क्या चल रहा है यहाँ पे? So these are the types of signal। Analog signal एक ऐसा कुछ होता है। फिर ये दिस इज द कंटिन्यूअस टाइम डिस्क्रीट वैल्यू। ये एक बार देख लो आप फिर एक बार। दिस इज हाउ द थिंग्स आर टू बी एक्सप्लेन्ड। फाइन, सो वी कम टू द एंड ऑफ द टुडे सेशन। एनी डाउट सर, एनी क्वेरी, कुछ कंफ्यूजन है आपको कि व्हाट इज एन एनालॉग सिग्नल, व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नल? आज का मेन एम वही था आप लोगों को मुझे समझाना कि भाई एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। Yes, sir. Okay, so students you can exit। जिनको डाउट है that person can stay back, the others can exit। Thank you, sir. Yeah, welcome बेटा, take care। Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome Thank बेटा। you, sir. Thank 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 you, sir. Sir, attendance? Attendance is generated automatically बेटा। Okay, thank you. Any student having any doubt, that person can stay, the others can exit। Sir, Yes, sir, बोलो can you आरती। share this PPT? Yeah, sure, definitely। Okay, sir. Thank you. Okay, so I end the call।